instructions. So let's start what control instructions are. Which are actually, they are taking the control of something. That means that they come under control instructions. Okay, so how many types of control instructions are? First of all, it is no. Okay, before moving to any control instruction, I would like to show you something. Just check, the operands are none in case of control instructions in this. Okay, that means all these opcodes itself explains what they mean. That means there is no operand required. Operand means, you all know, it may be a register, it may be a memory location, or it may be a data. All these things are not required in case of control instructions which are written here, not in all the control instructions. Remember this thing, केवल जो यहाँ पे लिखे हैं बस इसी में. So first is NOP. NOP means no operation. If you write this opcode NOP in the program, that means after that कोई भी operation perform नहीं होगा. Okay, that means the microprocessor can fetch the data, the microprocessor can decode the data, but no execution will take place. Okay, तो मैंने आपको जो तीन चीजें बताई थी, fetch, decode and execute, ये तीनों में से execution नहीं होगा. Remember this thing. So कोई भी operation आगे का perform नहीं होगा. Then comes HLT. HLT opcode is for halt. Halt का मतलब क्या होता है? रोक देना किसी चीज को. और enter into the wait state. You can say this also. That means what? कि अगर कोई भी instruction आपने दिया है, यहाँ पर सपोज आपने पूरे प्रोग्राम के एंड में HLT लिख दिया, so that means after that no program will further execute. ठीक है, कुछ भी आगे execute नहीं होगा. It will come into the wait state. It will finishes then and there itself, even if it is an interrupt. ठीक है, कोई interrupt, कोई reset, कुछ भी हो, कुछ भी वहां पर नहीं होगा. exit यानी halt state पर आ जाएगा. Next comes DI. DI means disable interrupts. Disable interrupts. Now here I would like to tell you one thing, कि कोई भी interrupt अगर आता है तो इस DI का मतलब ये हुआ कि आपने प्रोग्राम में पहले ही disable interrupt कर दिया कि अगर कोई interrupt आता है तो just disable that. We will check it afterwards, after the program will finishes. Okay, but remember that there is an interrupt with the name trap. In case of trap, this disable interrupt, this particular opcode will not work, because trap, as I told you, that कि वो आपका maskable नहीं है, that is a non-maskable interrupt, तो आप trap को disable नहीं कर सकते हो. So except trap, all other interrupts will get disabled. Then comes EI, which means enable interrupt. So enable interrupt means if you have disabled some interrupt, you want to enable that. Okay, so after the program finishes, you are enabling the interrupt. Okay, that means now you want the interrupt to get the to be executed. Okay, आप इसको execute कराने के लिए enable interrupt आप जो है ये instruction दे सकते हो. Then comes RIM. RIM means read interrupt mask. Now actually this instruction means you will check the status of few इंटरप्ट्स. ठीक है, कौन कौन से इंटरप्ट्स हैं जिनका आप जो है स्टेटस चेक करोगे? दैट इज RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5. ओके, यू हैव टू पुट दिस. यही तीन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि रीड इंटरप्ट मास्क आप ये चेक करोगे इनका स्टेटस, वेदर दे आर मास्क्ड और नॉट, वेदर दे आर इनेबल्ड और नॉट, वेदर दे आर डिसेबल्ड और नॉट. तो ये कुछ स्टेटस ऐसे हैं जो कि आप यही तीन पे ही आप वर्क करा सकते हो. ट्रैप में आप उनका स्टेटस चेक नहीं करोगे, बिकॉज दे कैन नॉट बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड. ठीक है, रहा INTR को मास्क नॉन मास्क करना. ठीक है, यू हैव टू चेक दैट, क्योंकि उसका जो है पर्टिकुलर कोई लोकेशन नहीं है, दे आर नॉट वेक्टर्ड ऑल्सो. तो INTR की तो सबसे कम जो है आप कह सकते हो प्रायोरिटी भी है. सो यू हैव टू चेक स्पेशली फॉर दीज 3. ठीक है, इसके अलावा then comes set interrupt mask. Set interrupt mask means while you check the status, you have to check कि इनके जो डाटा है आउटपुट वो आपका सीरियली जो है वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर SIM, जब ये इंस्ट्रक्शन आता है then there is a सीरियल आउटपुट डेटा SOD, जो कि मैंने आपको आर्किटेक्चर में बताया था. तो SOD यहाँ पे वर्क करता है. SOD का मतलब होता है सीरियल आउटपुट डेटा. सो नाउ सेट इंटरप्ट मास्क जब ये इनेबल होगा, जब ये प्रोग्राम में रन करेगा तो सीरियल आउटपुट डेटा चेक होगा. सिमिलरली RIM में आपका SID
ये स्टेटस चेक होगा, सीरियल इनपुट डेटा भी यहाँ पर जो होता है हम इसको भी साथ के साथ लेकर के चलते हैं, लोड कराते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स jump instruction. Okay, JMP stands for jump. So before moving to what jump is, I would like to tell you one thing. There are two instructions. The first one is jump instruction and the second one is call instruction. Jump का मतलब होता है कि इसके आगे आप जो भी 16 बिट का एड्रेस दे रहे हो वो उस जगह पे पूरा प्रोग्राम को छोड़ करके सीधे उस एड्रेस पे जो है पहुंच जाएगा। कॉल का मतलब ये होता है कि आप सारे प्रोग्राम की बाकी लाइनें छोड़ करके आप जहां से जिस भी ये 16 बिट का जो एड्रेस आप दोगे वो वहां से कॉल होकर के आ जाएगा, ठीक है। सो जंप और कॉल ये इंस्ट्रक्शंस आपके दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अनकंडीशनल, ओके, फर्स्ट वन इज अनकंडीशनल and the second one is conditional. Now, as the name suggests here, unconditional means while you are jumping to a particular memory location, to a particular address, ठीक है, आप वहां पे कोई condition नहीं है. If it is written directly, as you can check the example here, JMP 2034, okay, तो अगर ये आपका आया JMP 2034, that means may be possible that this is 2020, okay, and here I have written JMP 2034. So irrespective of what is written in 2021 to what is written in 2033, यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये सीधे 2034 यानी कि इस जगह पे जंप कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रोग्राम चल रहा होगा उसको जो है क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सो दिस इज व्हाट जंप इंस्ट्रक्शन मीन्स, ओके। नाउ this is the case of unconditional jump. In case of conditional jump, what happens now? Conditional jumps one works on the status of the flags. आप सीधे लिखोगे, for example I am writing here JC 2034, okay, now JC 2034 means this will jump, यानी कि ये जहां पर भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है 2020 पे चल रहा है, तो अगर ये आपका तभी जंप करेगा व्हेन द कैरी फ्लैग विल हैव 1, ओके, यानी कि जब कैरी फ्लैग सेट होगा तभी ये जाके 234 पे जंप करेगा, अदरवाइज ये वन बाय वन ही मूव करेगा, हर लाइन को, हर एड्रेस के पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उनको एग्जीक्यूट करा के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करेगा। सो इसे कहते हैं कंडीशनल जंप, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर आपको ऑपकोड्स देखने हैं फॉर डिफरेंट कंडीशनल्स जंप के, JNC मींस जंप ऑन नो कैरी, दैट मींस व्हेन कैरी इज 0, तो कैरी 0 होगा तभी जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। JP मींस जंप ऑन पॉजिटिव, दैट मींस साइन फ्लैग अगर आपका 0 है तो, माइनस जंप ऑन माइनस यानी कि नेगेटिव, साइन फ्लैग इज 1, अगर नेगेटिव है तो जंप करेगा। JZ जंप ऑन 0, Z अगर हाई है, 0 फ्लैग अगर हाई है आपका तो वो जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। NZ मींस जंप ऑन नो 0। JPE ऑन पैरिटी इवन यानी कि P is equals to 1 एंड पैरिटी ऑड JPO लिखेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम P दोनों में हम JP नहीं लिख सकते ना, तो यू हैव टू एक्सप्लेन वेदर P इवन है या ऑड है। सो JPE JPO, ऑड के लिए JPO, P is 0, ओके। नेक्स्ट इज call. As I told you, call instruction. Now suppose if it is suppose this is 2030 and here it is written call, that means you can call from anywhere. अब ये कॉल आप जो कर रहे हो ये कॉल आप 2020 पे भी कर सकते हो, मे बी that means उससे पहले का, और you can call from somewhere else also, ठीक है। That means what the program sequence transfer to the memory location specified by the 16-bit address given in the operand. So यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फिर से इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो सीधे, यानी कि आप कॉल कर रहे हो, वैल्यू को आप कॉल कर रहे हो, आप बुला रहे हो कि 2020 वाला एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है वो यहाँ पर क्या हो, प्रोसीड हो, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो उसका प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू होगी। ऑपकोड्स सेम है, दैट मीन्स अगर कॉल कैरी था तो जंप के केस में JC हो गया था और कॉल के केस में CC हो जाएगा। जंप के केस में JNC अगर कुछ है तो कॉल के केस में CNC हो जाएगा। दैट मीन्स ये चीज लास्ट के दो जो बिट्स हैं वो सेम रहेंगे हर फ्लैग स्टेटस के लिए। दैट मीन्स
CM colon minus S is 1. CP यानी कॉल ऑन पॉजिटिव, दैट मीन्स S की वैल्यू 0 होनी चाहिए. सो यही चीज अगर जंप में होती तो वो JP था एंड JM था. सो यू रिमेंबर दिस थिंग कि साइन फ्लैग के लिए आपके जो ऑपकोड्स होंगे वो सेम रहेंगे, बस आपको जंप के लिए J लगाना है और कॉल इंस्ट्रक्शंस के लिए C लगाना है. Okay, so let's see. CZ means colon 0, CNZ means colon no 0. That means the value of 0 flag should be this or this. Call if parity is even, that means P is equals to 1, and call if parity is odd, that means P is equals to 0. तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं conditions पे call होगा. Unconditional के लिए जो आप लिखोगे that will be clearly written as CALL call. Okay, call 2034 और आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो एज द एग्जाम्पल गिवन हियर. ठीक है, ये कॉल का इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. बाकी CC, CNC, CP, CM, CZ ये सारे आपके क्या हो गए, कंडीशनल कॉल के ऑपकोड्स हैं. ओके, सो हियर I rest with this particular video because your control instructions completes here. So we'll deal with the next topic in the next video. Thank you. Take care. Bye bye.